Hello students, I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your English subject. So in this video I will explain your grammar portion. Your grammar portion second chapter, which is kinds of sentences. What it is? Yes, kinds of sentences. So before this video of grammar, I have sent you video of your first chapter. Okay, so before starting your second chapter, I am going to recall few points of your first chapter. So in your first chapter I have explained about the sentence. Yes. So tell me, what is sentence? Tell me. Yes. A sentence is a group of words that makes a complete sense. What is sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Let's come to the example. If I am giving you example, Raj is, then it is incomplete. It cannot tell us what Raj is or what Raj is doing. So this is not a complete sentence. If I am giving you example, Raj is playing, Raj is a player. So it is a sentence because it is complete. It is also telling about Raj, like what Raj is playing. Okay. Now few points about the sentence. Okay, a sentence always begins with a capital letter. The words used in a sentence must be arranged in a proper order. A sentence always ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark. Okay, so these are few points which is related to your first chapter. Now let's come to your second chapter, and the title is kinds of sentences. So in this chapter we're gonna study about types of sentences, like how many types of sentences, how we know or how we understand which sentence is of which type. Okay, so let's start. Sentences are of four types. Sentences कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, है ना? 4 प्रकार के होते हैं. So first one is statement. Second one is question, and third one is command, and the fourth one is exclamation. Okay, so how many types of sentences? Tell me. Yes, there are 4 types of sentences: statement, question, command, and exclamation. Okay, now let us understand what is statement sentence. Statement sentence हम कहते किसे हैं? Okay, this type of sentence states or says something. Okay, तो इस तरह के sentence जो हैं वो कैसे होते हैं? वो कुछ बताते हैं किसी के बारे में या कुछ कहते हैं. Okay, what is the definition of a statement sentence? This type of sentence states or says something. Let us come to the example. Here is your example. Your first example is, we go to school by bus. We go to school by bus. हम लोग स्कूल किसी से जाते हैं? बस से जाते हैं. Another one is, Bobby is a beautiful girl. बॉबी जो है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है. तो क्या है, ये जो 2 एग्जाम्पल हैं आपके, वो क्या हो गए? एक स्टेटमेंट सेंटेंस है. कैसे हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस है. Here are few points which tell you about the statement sentence. So first one is, a statement sentence always ends with a full stop. A statement sentence always ends with a full stop. कभी भी
स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो एंड करता है तो उसके लास्ट में क्या होता है, एक फुल स्टॉप होता है ना। फुल स्टॉप के अलावा उसके एंड में और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अ स्टेटमेंट सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इज आल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो हम स्टेटमेंट सेंटेंस को और किन दो नामों से जानते हैं, एक तो हो गया आपका डिक्लेरेटिव और दूसरा हो गया असर्टिव सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप which is question sentence. What it is? Yes, question sentence. This type of sentence ask something. This type of sentence ask something. तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, इस तरह की जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ Why is he sweating? Why is he sweating? तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उसे पसीना क्यों आ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है, कुछ पूछ रहा है। Now your second example. Your second example is what is she drinking? Look here, what is she drinking? फिर इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है कि वो क्या पी रही है ना। तो इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए क्या हो गए, क्वेश्चन सेंटेंस हो गए। ओके, नाउ अ क्वेश्चन सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन सेंटेंस को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ फ्यू पॉइंट्स आर हियर which is related to your question sentence. So the first one is these sentences ask about something or someone. तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ या किसी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। Your second point is a question sentence always ends with an interrogative mark. Always end with an इंट्रोगेटिव मार्क। और इस सेंटेंस की पहचान करने के लिए हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि क्योंकि उसके लास्ट में जो होता है क्वेश्चन मार्क होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं दिखता है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो आप उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ, ये क्वेश्चन सेंटेंस हुआ। ओके, now the third one which is command sentence. What it is? It is command sentence. It requests or orders something to the subject of the sentence. However, the subject you is not used in such a sentence and it begins with a verb. तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंस में कोई ना कोई ऑर्डर को दिखाता है ना, कोई ना कोई रिक्वेस्ट होता है, नहीं तो कोई ना कोई ऑर्डर होता है। कोई इंसान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है या फिर ऑर्डर कर रहा होता है। और इस तरह के सेंटेंस में जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट जो है वो यू नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यू नहीं होता है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किसी से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एंड व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, अ वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड। कोई भी ऐसा वर्ड जिससे किसी एक्शन का पता चले, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज़ कमांड सेंटेंस? अ कमांड सेंटेंस इज़ इट रिक्वेस्ट और ऑर्डर समथिंग टू द सब्जेक्ट। ये क्या करता है, या तो रिक्वेस्ट करता है या तो ऑर्डर करता है, किसको, सब्जेक्ट को। ओके, और फिर है हाउएवर द सब्जेक्ट यू इज़ नॉट यूज्ड इन सच अ सेंटेंस एंड इट बिगिंस विथ अ वर्ब। और इसमें क्या होता है कि कभी भी यू जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, कभी भी ये सेंटेंस यू से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। और इस सेंटेंस में जो भी उसका बिगनिंग होता है, स्टार्ट होता है, वो किसी से होता है, वर्ब से होता है। किसी से होता है, वर्ब से होता है। लेट्स सी
Examples. So your first example is open the windows. Open the windows. तो ये क्या है? एक ऑर्डर है. क्या है? ये ऑर्डर है ना. हम किसी को कह रहे हैं विंडो ओपन करने के लिए, है ना. तो ये क्या है? एक ऑर्डर है. लेट्स सी हियर द सेंटेंस इज बिगिन विथ वर्ब. ये किससे से स्टार्ट हुआ है? वर्ब से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ओपन इज वर्ब. ओपन इज वर्ब. नाउ योर सेकेंड एग्जाम्पल विच इज़ प्लीज़ स्टैंड अप. प्लीज़ स्टैंड अप. तो ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है ना. जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का यूज़ करते हैं ना. तो ये क्या हुआ? एक रिक्वेस्ट हुआ. ठीक है. गॉट इट एवरीवन? लेट्स सी फ्यू points are there which is related to your command sentence. So your first point is a request order sentence that expresses a command or request is also called an imperative sentence. तो जो command sentence है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसका एक और नेम है जिसे हम क्या कहते हैं? imperative sentence कहते हैं. तो आप इस तरह के सेंटेंस को command sentence भी कह सकते हैं, imperative sentence भी कह सकते हैं. ओके. Now, second point. An order or a request sentence always ends with a full stop. Always ends with a full stop. तो जो भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, जो कि कमांड सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो जो है हमेशा एंड करते हैं. तो उनके लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है. ओके. नाउ द फोर्थ वन which is exclamation sentence. What it is? It is exclamation sentence. It expresses strong and sudden feelings such as happiness or sadness which the subject of the sentence may have at the time of speaking. Again I am recalling, it expresses strong and sudden feeling. ये क्या करता है कि किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ना. वो फीलिंग कैसी भी हो सकती है. वो फीलिंग जो होती है वो अचानक से आ सकती है ना. तो वैसी फीलिंग्स को क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है. सच एज हैप्पीनेस और सैडनेस. और वो फीलिंग्स जो है वो कैसी होती है? या तो आपकी हैप्पीनेस होती है या तो आपकी सैडनेस होती है ना. कोई भी ऐसी फीलिंग जो कि अचानक से आए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, है ना. जैसे कि उस टाइम लगे कि आप बिल्कुल एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को. कोई उसके लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. लाइक आउच, है ना. बहुत खुश होते हैं तो हुर्रे. तो ये सब किस तरह के वर्ड्स होते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं. ठीक है. तो ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? हैप्पीनेस को और सैडनेस को. विच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो कब ये फीलिंग्स आती है? जब हम कभी कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर अचानक से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, और फिर हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं. तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन सेंटेंस. क्या कहते हैं? एक्सक्लामेशन सेंटेंस. नाउ हियर इज few examples which is related to your exclamation sentence. So the first example is what a beautiful scenery. What a beautiful scenery, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई सीनरी है जो कि उसे बहुत पसंद आया है, तो उसकी ये में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सीनरी है. ओह आई लॉस्ट माई न्यू पेंसिल. ओह आई लॉस्ट माई न्यू पेंसिल, है ना. इसमें क्या कर रहा है? वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है और उसे बहुत बुरा लग रहा है ना, क्योंकि क्या हुई? उसकी पेंसिल गुम हो गई. सो दीज आर एग्जाम्पल्स. नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट. An exclamation sentence always ends with an exclamation mark. और कभी भी जो होता है exclamation sentence, वो हमेशा end किसी से करता है? exclamation mark से करता है. हमेशा उस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? exclamation mark होगा, है ना. अगर कोई सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसके लास्ट में exclamation mark है, तो वो किस तरह का सेंटेंस हो गया? वो exclamation sentence हो गया. ओके, गॉट इट एवरीवन? Again I am repeating,
There are 4 types of sentences. First one is a statement sentence, second one is question sentence, third one is command sentence, and fourth one is exclamation sentence. Okay, now let's come to the fact, files and summary. Facts, files and summary. So there are 4 kinds of sentences. First one is a statement sentence, question sentence, second one, third one is command sentence, fourth one is exclamation sentence. Here are few points. So your second point is, an assertive sentence and an imperative sentence always ends with a full stop. assertive और imperative, जिसे हम statement sentence भी कहते हैं, वो हमेशा किसी से end करता है, full stop से end करता है. Okay? An interrogative sentence always ends with an interrogation mark. और interrogative sentence किसी से end करता है, interrogation mark से. interrogation mark इसे कहते हैं, question mark को ही interrogation mark कहते हैं. An exclamation sentence always has an exclamation mark. और exclamation sentence के लास्ट में हमेशा क्या होता है, exclamation mark होता है. This is your exclamation mark. Got it everyone? Okay. So this is your second chapter, which is kinds of sentences. Okay, so your homework is, you have to read this chapter. What you have to do? You have to only read this chapter. Okay.